A wave which travels in a medium is known as a progressive wave, and if the particles of the medium vibrate simple harmonically, then the progressive wave is known as the plane progressive wave. Plane progressive wave. And here suppose a disturbance travels in a medium. The particles at O and the particles at P, particles at O starts first to vibrate, and after this the particle, after some time the particle P starts vibrating about its mean position, and since the particle O at O, open to particle है, it starts vibrating initially, and after some time P starts vibrating. As a result, it leads phase and it lags phase. ये पीछे रहता है, वाइब्रेशन में पीछे रहता है. So, if in one oscillation, when the path difference is lambda, then phase difference is 2 pi. So, at any instant, the displacement of the particle at O, at any instant, the distance of particle at O, y equal to a sin omega t. The particle at P lags phase phi with respect to O. Therefore, the displacement of the particle at P, displacement of particle at P, y is equal to a sin omega t minus phi. The particle at P lags phase phi with respect to the particle at O. When path difference is lambda, then phase difference is equal to 2 pi. ध्यान रखना, when path difference is lambda, then phase difference is 2 pi, and when path difference is 1 unit, the phase difference is 2 pi upon lambda. और ध्यान रखना, अगर एक पार्टिकल हम और अज्यूम करें यहाँ पे अगर ए अज्यूम करें पार्टिकल ए, और डिस्टेंस कितनी है, अगर यहाँ से x डिस्टेंस कंसीडर करें, x डिस्टेंस, तो लिखेंगे when path difference is x, then phase difference phi is equal to 2 pi upon lambda into x. Then phase difference phi is equal to 2 pi upon lambda into x. Therefore, y is equal to a sin omega t minus 2 pi upon lambda into x. This is the equation of the progressive wave at any time. Y is equal to a sin omega t minus 2 pi upon lambda. Here k is known as the wave number. इसको 2 पाई अपॉन लैम्डा करते हैं, इसको वेव नंबर कहते हैं. 2 पाई अपॉन लैम्डा के, तो के के प्लेस पर इट इज y is equal to a sin
omega t minus kx. This is the general equation of progressive wave. This is general equation of progressive waves. This is general equation of progressive wave. इसका एक जनरल फॉर्म है y इक्वल a sin ओमेगा t माइनस kx. अब इसको अगर हम इसी से हम डिफरेंट फॉर्म में इसको निकालेंगे. इफ ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन t, ओमेगा 2 पाई अपॉन t and k is equal to 2 pi upon lambda. If we put here, then y is equal to a sin omega के प्लेस पे लिखेंगे 2 pi upon t into t minus kx 2 pi upon lambda into x. Now you see this y is equal to a sin 2 pi take out common t upon t minus x upon lambda. तो हम ये दूसरा फॉर्म इसका पा जाते हैं. नेक्स्ट फॉर्म हम मतलब इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं. ये कैपिटल टी है. हाँ, स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी पीरियडिक टाइम में होता है. ओमेगा इक्वल टू पाई अपॉन टी होता है. यस. नाउ दिस y इज इक्वल टू, यू कैन अगेन राइट a sin 2 पाई अपॉन टी. अगर कॉमन लेंगे बाहर तो क्या होगा, 1 अपॉन टी को बाहर करें तो होगा टी माइनस और 1 अपॉन टी एक्स टी अपॉन लैम्डा होगा ना. अगर हमने 2 पाई अपॉन टी कॉमन ले ले तो क्या मिलेगा. और हम जानते हैं कि लैम्डा अपॉन टी को क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ वेव. लैम्डा अपॉन टी इज द वेलोसिटी ऑफ वेव. So t upon lambda 1 upon v. So you can write as y is equal to a sin 2 pi upon t minus x upon velocity. तो ये दूसरा फॉर्म इक्वेशन का मिल जाता है. बड़ा सिंपल है, खाली देखने में ऐसे तैयार लग रहा है. थोड़ा भारी लग रहा है ना. इससे पहले तो ऐसे जम वाला था. अरे मैं से जम. तो अभी वही जो है वही तो है y इक्वल टू sin ओमेगा t. हां सर 2 पाई बाय t के लिए कुछ लिख सकते हैं ना. 2 पाई अपॉन t लेते हैं ना, जैसे कुछ लिख सकते हैं जैसे ओमेगा. 2 पाई अपॉन t को ओमेगा लिख सकते हैं. लेकिन ठीक है, ओमेगा जानते हो ओमेगा t माइनस kx में. अच्छा फिर देखो याद इसको चाहो तो 2 पाई अपॉन लैम्डा को अगर कॉमन ले लो, देखो y is equal to a sin 2 pi upon lambda take out common. But see lambda को करोगे what 2 pi है क्या upon lambda take out common. ये तो हो जाएगा lambda upon t और ये हो जाएगा केवल x. तो ये हो जाएगा it is lambda upon t minus x. And so this comes out to be a sin 2 pi upon lambda vt minus x. This is another form. Is it clear? So in this way you can change this progressive wave. Now relation between the phase difference, is it clear, Paul? Now relation between the phase difference and path difference. Now relation between phase difference and path difference. Phase difference and the path difference we have. We know that
the general equation of progressive wave y is equal to a sin omega t minus kx. You know that this argument is known as the phase. So phase phi is equal to omega t minus kx. Here rate of change of phase, अगर हम इसको कहेंगे डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी एक्स अगर निकालें, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस फेज विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट अगर एक्स है तो जब हम एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0 माइनस के, और के की जो हम इसको डी फाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस के, एंड यू नो दैट के की वैल्यू 2 पाई अपॉन लैम्डा भी जस्ट हमने किया था. सो डेल्टा फाई, इसको डी फाई को लिखेंगे डेल्टा फाई फेज डिफरेंस अपॉन डेल्टा एक्स इट इज पाथ डिफरेंस, इट इज इक्वल टू माइनस 2 पाई अपॉन लैम्डा. thus phase difference it is equal to delta phi, it is equal to minus 2 pi upon lambda into path difference delta x. So phase difference, we find that the phase difference it is equal to minus 2 pi upon lambda into path difference. इसको path difference कहते हैं. देखना पाथ डिफरेंस इट इज इक्वल टू लैम्डा, इफ डेल्टा एक्स हमारा लैम्डा के बराबर हो जाए तो फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा माइनस 2 पाई, मतलब 2 पाई पीछे चला जाएगा. फेज निगेटिव साइन ये बताता है कि इसके बाद का जो पार्टिकल हमारा है यहाँ पे जो है, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा के बराबर होगा तो फेज कितना होगा 2 पाई पीछे होगा. निगेटिव साइन इंडिकेट, निगेटिव का सिंपल सा मीनिंग है कि इट लैक्स फेज 2 पाई. कभी कभी फेज चेंज ऑफ एयर, फेज चेंज ऑफ फेज विथ रेस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट, फेज चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम हम देखा देते हैं. फेज चेंज phase change with respect to time, phase change with respect to time. So what we said, what is that here? Here phi equal omega t minus kx, d phi by dt it is equal to, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा 0, ये हो जाएगा ओमेगा, और ओमेगा को लिखते हैं इट इज 2 पाई अपॉन टी. सो डी फाई इट इज इक्वल टू d phi is equal to 2 pi upon t dt, means delta phi is equal to 2 pi upon t delta t. So this is the relation between the phase difference and the time interval. Phase difference and the time interval. This is the relation between the phase difference and the time interval. और यहाँ पर भी if delta t it is equal to periodic time, then delta phi is equal to 2 pi upon t into t. तो यही आ जाता है 2 पाई, मतलब
पीरियोडिक टाइम में फेज डिफरेंस 2 पाई या एक वेवलेंथ में फेज डिफरेंस 2 पाई, दोनों चीजें वेरीफाई हो रही हैं। Now, relation between the particle velocity and wave velocity. Relation between particle velocity and wave velocity. देख लेना particle velocity and wave velocity. We know that the equation of progressive wave y is equal to a sin omega t minus kr. Velocity of the particle is the displacement of the particle at any instant. It is the y is the displacement of the particle at any instant. Therefore, velocity of particle velocity of particle v, it is equal to dy dt, and this will be equal to dy dt of a sin omega t minus kx. And here you see this factor v, it is equal to dy dt, तो हो जाएगा a ओमेगा cos omega t minus kx. ये क्लियर हुआ? ये साइन ओमेगा टी का a ओमेगा cos ओमेगा t माइनस kx. हम इसको ये तो रहेगा ही d बाई डी एक्स साइन टी का cos t, और अंदर का फिर करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा ना। Again, dy dx is equal to, we will find the dy dx. So dy dx, change in displacement here. So dy dx it is equal to a sin omega t minus kx. तो ये वैल्यू हो जाएगी dy dx, ए साइन को लिखेंगे ए हमारे पास है साइन एक्स का cos एक्स, तो सीधे लिख लेंगे ए साइन का cos एक्स, लिखेंगे ए cos ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो हमें मिलेगा क्या? इसको ये तो हम कांस्टेंट हो जाएगा और एक्स वेरिएबल होगा माइनस के, तो वैल्यू हो जाएगी माइनस ए के cos ओमेगा टी माइनस के एक्स. Here you see d by dx. Now the we have v this much e omega cos omega t minus kx. d by dx we have minus a k omega cos omega t minus kx. Therefore v upon d by dx it is equal to, अगर डिवाइड करते हैं तो हमें एक रिलेशन मिल जाता है ए ओमेगा cos ओमेगा टी माइनस के एक्स अपॉन माइनस ए के cos ओमेगा टी माइनस के एक्स. And what you get here? This cancelled out, a also cancelled, and we find that देखना v is equal to v upon d by dx it is equal to minus omega upon k. और ओमेगा को 2 पाई अपॉन t कहते हैं और k को 2 पाई अपॉन लैम्डा. So 2 pi cancelled out and we found that lambda upon t.
lambda upon t is known as the wave velocity. Lambda upon t, it is wave velocity. इसको लिखेंगे wave velocity. Thus v is equal to minus v d by dx means particle velocity is equal to particle velocity is equal to wave velocity into slope. डी बाई डी एक्स को स्लोप कहते हैं, ध्यान रखो, डी बाई डी एक्स स्लोप डी बाई डी एक्स, यही हमारा रिलेशन है। तो अगर कभी पूछा जाता है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द पार्टिकल वेलोसिटी एंड द वेव वेलोसिटी, तो हम यही निकाल लेते हैं। नेगेटिव साइन क्या है? नेगेटिव साइन वही फेज के लिए ही है कि दोनों में डिफरेंस आता है फेज का, पार्टिकल अलग है, वेव अलग है। तो ये जो है, ये हमारे पास पार्टिकल वेलोसिटी इक्वल टू माइनस वेव वेलोसिटी इनटू द स्लोप डी बाई डी एक्स, एक रिलेशन ही मिल जाता है दोनों के बीच का। और फिर एक्सेलरेशन निकालने के लिए ऐसे आता है, try to understand. Here the acceleration we know that y is equal to a sin omega t minus kx. तो इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, d by dt a ओमेगा cos ओमेगा t minus kx, और एक बार और डिफरेंशिएट कर लेते हैं तो एक्सेलरेशन आ जाता है, इट इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस टाइप का हम लोग पहले कर चुके, और ए इज इक्वल टू माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को वाई अपान ए लिख सकते हैं, तो वाई अपान ए। तो हमारे पास a is equal to minus omega square y, means in progressive wave a is directly proportional to minus y। ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। बस ग्रेजुएशन अब खत्म ही है, अब हम लोगों को कुछ टर्म्स जानने हैं, जैसे बाउंड्री इफेक्ट क्या होता है। बाउंड्री इफेक्ट देखना जरा, बाउंड्री इफेक्ट होता क्या है, जब हमारी एक वेव ऐसे रिजिड बाउंड्री से टकराती है, तो रिजिड बाउंड्री क्या करती है, क्रेस्ट को ट्रफ में बदल देती है और वेव को भेज देती है। तो फेज डिफरेंस जो ये डायरेक्शन थी, तो फेज का जो डिफरेंस आ जाता है, जिसे अगर एक वहाँ पे अगर हार्ड सरफेस को हार्ड सरफेस से अगर कनेक्ट कर दिया जाए एक रस्सी को यहाँ से, तो वहाँ जाएगा तो ये वेव जो है, जो हार्ड सरफेस है, हार्ड सरफेस को नहीं बदल सकता, हार्ड सरफेस वेव को बदल देगा। तो हार्ड सरफेस जो रिजिड बाउंड्री से टकराता है, रिजिड बाउंड्री तो रिजिड बाउंड्री से टकराता है तो क्रेस्ट को ट्रफ में बदल देता है, तो फेज का चेंज कितना आता है, पाई का चेंज आ जाता है। तो जाते समय वेव जो होती है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, जो लौटती है वेव, तो इसका जो डायरेक्शन अभी इधर था पॉजिटिव, अब इसका डायरेक्शन नेगेटिव हो जाता है, तो y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी जो माइनस के एक्स है प्लस के एक्स हो जाता है, और प्लस पाई का चेंज आ जाता है, ध्यान रखना, पाई फेज का चेंज आ जाता है। तो इसलिए जो रिजिड बाउंड्री से जो वेव टकरा के आती है, उसका इक्वेशन
साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, नंबर पड़े होंगे, साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर वैल्यू हो जाएगी माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के। और ये हमारे पास ये रिजिड बाउंड्री से अगर टकराती है, और अगर साफ बाउंड्री ओपन बाउंड्री में अगर करते हैं, ये देखो जब वेव चल रही है ना, तो वेव जब रिजिड बाउंड्री से टकराती है, अगर क्रेस्ट टकराएगा तो क्रेस्ट को ट्रफ में बदल देती है रिजिड बाउंड्री। जैसे खूंटी ऐसी होती है ना, हार्ड खूंटी, दो तरह का हार्ड हो, ताकि वेव जाकर के रस्सी की जो वेव है उसे चेंज ना कर सके। दो तरह से कभी कभी क्या होता है, एक रिंग बांध करके तब लोग उसका जो है एक रस्सी को बांधते हैं, तो वह ओपन बाउंड्री कही जाती है। लेकिन जब हार्ड बाउंड्री से टकराते हैं, हार्ड बाउंड्री अगर खूंटी अगर हार्ड है, तो हम वहाँ पे जब रस्सी को लेके जाते हैं, जब वेव जाती है, तो जो अगर क्रेस्ट है तो क्रेस्ट जाके टकराएगा, तो क्रेस्ट को ट्रफ में बदल दे करके वेव रिटर्न हो जाती है। तो क्रेस्ट को जब ट्रफ में रिजिड बाउंड्री बदलती है, तो फेज का डायरेक्शन बदल जाता है, दूसरे ये ऊपर से जस्ट अपोजिट कर देता है, तो ये इसका डायरेक्शन बदल जाता है, डायरेक्शन के साथ साथ फेज बदल जाता है। कितने का फेज बदलता है? पाई का, 180 डिग्री का। ऐसे केस में ये जो डायरेक्शन माइनस के एक्स होती थी, अब प्लस के एक्स हो जाएगी, डायरेक्शन बदल गए। फेज कितना चेंज हुआ? पाई का चेंज हुआ। साइन पाई प्लस थीटा होता क्या है? माइनस साइन थीटा। तो हमारे पास जो रिटर्निंग वेव होती है उसका जो इक्वेशन है बदल जाता है, और y इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये रिजिड बाउंड्री। लेकिन अगर ओपन बाउंड्री से टकरा रही है तो ओपन बाउंड्री एलसी बार ओपन बाउंड्री, जब हमारी वेव जाती है ओपन बाउंड्री अगर है, तो ये क्रेस्ट को ट्रफ में, ये जो है वेव के अनुसार अपने ही फ्लेक्सिबल होती है। जैसे हमारे पास बांसुरी होती है ना, बंसी, किनारे फ्लूट जो होता है, किनारे किनारे ओपन होता है। तो जो सीटी होती है, ऐसे कहते हैं रिजिड बाउंड्री होती है, वो रिजिड बाउंड्री, बाहर रिजिड बाउंड्री होती है एक तरफ। लेकिन जो हमारे पास जो बंसी होती है फ्लूट, वो दोनों तरफ ओपन बाउंड्री होती है। ओपन बाउंड्री उसे कहते हैं, वो एयर वाइब्रेट करती है तो उसका फेज चेंज नहीं होता, ध्यान रखना, केवल डायरेक्शन बदल जाती है। वेव एयर जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव उसमें वाइब्रेट करती है। अभी लोगों को फिलहाल ओपन आर्गन पाइप, क्लोज आर्गन पाइप अभी चूंकि निकाल दिया गया है, नहीं तो उसको डिटेल पढ़ने हो जाता है काम। लेकिन अभी ध्यान में रखो कि ओपन बाउंड्री वो होती है कि जो वेव के अनुसार अपनी पोजीशन को बदल दे। जब यह ओपन बाउंड्री से ओपन बाउंड्री, इसे रिंग ऐसे करके ना, कभी कभार ऐसे रिंग करके करा देते हैं और इसमें से रस्सी बांध देते हैं, तो ये जब वेव जाएगी तो ये रिंग अप डाउन हो जाती है, रिंग ही अप डाउन हो जाती है। मतलब रिजिड बाउंड्री नहीं है, दैट इज ओपन बाउंड्री को कहते हैं, ओपन बाउंड्री। और जब ओपन बाउंड्री से टकराता है तो ये क्रेस्ट का क्रेस्ट ही रह जाता, ट्रफ में नहीं चेंज होता। ऐसी स्थिति में फेज में कोई चेंज नहीं आता, केवल डायरेक्शन बदल जाता है। तो जो जाने वाली वेव है y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, लेकिन जो रिटर्न वेव हो रही है ओनली डायरेक्शन हैज बीन चेंज, देयर इज नो चेंज इन द फेज, सो साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। अगर रिजिड बाउंड्री से टकराता है तो माइनस ए साइन, अगर ओपन बाउंड्री से टकराता है तो ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। ये चीज हमें मिल जाता है। और एक हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव। स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव देखो जरा, स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव। और स्टैंडिंग
पहली वेव प्रोग्रेसिव वेव थी, चलती थी। यह वह वेव है जो चलती नहीं है, that appears stationary। ये बनती कैसे है? when two waves of same frequency, same amplitude travel in opposite direction। नोट कर सकते हैं स्टैंडिंग वेव होती क्या है? when two waves same frequency, same amplitude travel in opposite direction in the same medium, travel in opposite direction in the same medium, then the resultant wave does not move in any direction, it only expands and shrinks, This is known as expands and shrink. This is known as a standing wave। देखिए वो बच्चे वो लेकर के एक आता है ना कि खिलौना ऐसे से खींचते हैं, हाँ, तो उसको क्या कहते हैं? स्लिंकी कहते हो, तो जो भी कहो, पता नहीं उस खिलौने का क्या नाम है, ठीक है ना? स्प्रिंग टाइप का रहता है। हाँ, स्प्रिंग टाइप का खींचते हैं, तो ये ऐसी वेव बनती है। देखो, एक्सपैंड एंड श्रिंक। तो ये ध्यान में रखना, यह वेव दिस वेव डज नॉट अपीयर टू मूव इन एनी डायरेक्शन। किसी डायरेक्शन में चलती हुई नहीं मालूम पड़ती, ओनली एक्सपैंड्स एंड श्रिंक। और स्टैंडिंग वेव हमेशा बाउंडेड मीडियम में ही ये प्रोड्यूस होती है। बाउंडेड मीडियम जैसे सितार, गिटार, ढोल में देखे होंगे, तो ढोल में बाउंडेड होता ही है। ये बंसी, बांसुरी, जो कि जहाँ भी बाउंडेड मीडियम है, हर जगह यही स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होती है। और एक सितार में क्या, एक जगह से हम खाली करते हैं, ऐसे एक जगह से वेव को हम प्रोड्यूस करते हैं, वह वेव दूसरे मीडियम से टकरा करके लौटती है। दोनों का जो रिजल्टेंट है डज नॉट अपीयर टू मूव इन आइदर डायरेक्शन, एज ए रिजल्ट it only expands and shrinks. This is known as the standing or stationary wave। In stationary wave, when the displacement is maximum, then it is known as the antinode। ध्यान रखना, antinode। And where the displacement is minimum, this is known as the node। इसे नोड कहते हैं, ध्यान रखना। नोड पार्टिकल आर परमानेंटली कांस्टेंट। ये हमेशा परमानेंटली कांस्टेंट होते हैं, ये फिक्स होते हैं। ये पार्टिकल हमेशा कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट। और इसको एंटी नोड कहते हैं, इसको नोड कहते हैं। इट इज एंटी नोड, दिस इज नोड। एंटी नोड हमेशा रिजिड बाउंड्री पर लास्ट में नोड ही बनता है, ध्यान रखना, हमेशा नोड। और नोड के बीच की डिस्टेंस को λ/2 होती है, और नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस λ/4 होती है। ध्यान रखना, नोड और नोड के बीच की डिस्टेंस हमेशा λ/2, और नोड और एंटी नोड के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये हमेशा λ/4 पे फिक्स होती है। तो यही हमारा स्टेशनरी वेव है। और एक टॉपिक और है लास्ट में, जिसे हम बीट करते हैं। तो बीट जरा देख लेना होता क्या है। यही हमारा स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव। वन नोड और 190 नोड और एंटी नोड के बीच λ/4, और वन नोड और नोड के बीच या एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस को भी हम λ/2 ही करते हैं। नोड या एंटी नोड
या नोड और एंटी नोड के बीच की डिस्टेंस है लैम्डा बाई 4। इट इज स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव, ये हमेशा बाउंडेड मीडियम में ही प्रोड्यूस होती है। जो प्रोग्रेसिव वेव होती है अनबाउंडेड मीडियम में चलती है, लेकिन जो यह वेव होती है इट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन द रिजिड मीडियम। नेक्स्ट बीट क्या होता है, बीट इन लास्ट Yes, sir. व्हाट इज बीट? बीट देखो होता क्या है, फिर टू साउंड वेव्स, पहले ध्यान में रखो कि बीट होता क्या है। When two sound waves of slightly different frequency travel in two sound wave of slightly different frequency travel in the same medium in the same direction, then the resultant sound rises and fall alternatively. Then when two sound waves of slightly different frequency travel in the same medium in the same direction, clear? Then the resultant sound rises and fall alternatively. The resultant sound rises and fall alternatively. This is known as the beat. इसे ही हम बीट कहते हैं। टू साउंड वेव है स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। ऐसे ही देख लेना, अगर हमारे पास टू साउंड वेव है स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी अगर ऐसे चल रही है, तो इनका जो मिलने के बाद इनका जो रिजल्टेंट साउंड बनता है कुछ ऐसे बनता है। Rises and fall alternatively. ऐसे ही ये देखो, इसको एक राइज के पास इसको वैक्सिंग और वैनिंग कहा जाता है। राइजिंग को वैक्सिंग और इसको फॉल को वैनिंग कहा जाता है। वैक्सिंग एंड वैनिंग, वैक्सिंग और वैनिंग।